Dear students, we are starting with PYQs from the chapter Motion in a Straight Line, and these are the following questions which we are going to discuss in this session. Let us start with the first question. These questions are based on topic number 1, which is distance, displacement and uniform motion. Question number 1, the person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation. Dear students, the name of the concept which we are studying right now is equal distance in unequal time. So the particle, let us say it is going from where to where? It is going from A to B and then from B to C, and the distance here is both equal, x and x. Let us say the time taken in covering this distance is t1 and the time taken in covering this distance is t2, and they are asking what is the average speed. So dear students, the formula for average speed is total distance. You can also call it as total displacement. Okay, average velocity and average speed will be same. Why? Because the particle is doing straight line motion. Total distance is x plus x and total time will be t1 plus t2. Children, x plus x will become 2x. Can I write t1 time? What is time, dear students? Speed is equal to distance upon time. Therefore time will be equal to what? Distance upon speed. So can I write instead of time distance? What is the distance covered? X. What is the speed? v1. For first case the velocity is what? v1 bacha. Second case the velocity is what? v2. Similarly for second case what you are going to write? x upon v2. Children, anything which you can gain common, 2x यहाँ पे आ जाएगा. X can be taken as common, 1 upon v1 plus 1 upon v2. Now you can write average speed as v. This x and x will cancel out. You are left with 2 upon 1 upon v1 plus 1 upon v2. If you rearrange, dear students, this denominator will go up, v will come down, and if you look at option C, you will get the final answer. C is equal to 2 upon v1 plus v1 by v2. This was question number 1. Let us discuss question number 2. What is question number 2, dear students? Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1, full stop. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving escalator. So there are two situations. First situation, Preeti is walking on the escalator, that is the velocity of Preeti because the escalator is not working. Second case is Preeti is just standing on the escalator and the escalator is moving upward. So it is the velocity of escalator. Let us write this down. Velocity of Preeti, and we will find velocity of escalator. Two things, na? First case, on the first day, if you look, escalator is not working. Okay, dear students, can I write velocity as distance upon time? So the distance is h and the time taken is t1. Let us call this velocity as v1. In second case, Preeti is at rest, escalator is moving. So this is velocity of escalator. Again height will be h only. Time taken will be t2 and velocity will be v2. Dear students, I want to find what if she starts moving on the escalator and the escalator is also moving. So now there are two velocities involved, that is velocity of Preeti as well as velocity of escalator. So net velocity v1 plus v2. Okay, and they are telling how much time it will take. Dear students, can I write net velocity will be distance upon time, so total distance upon total time. Can I write v1 के जगह पे h upon t1? Can I write v2 के जगह पे h upon t2? Children, what can be taken as common? H will be common. 1 upon t is equal to 1 upon t1 plus 1 upon t2. If I cross multiply, rearrange, what will be the final answer? Therefore t will be equal to, this 2 will cross multiply na bacha, t1 into t2 upon t1 plus t2.
This is the total time taken when Preeti is walking on a moving escalator. The escalator is also moving and Preeti is also moving. Option B. Question number 3. A particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half with the speed v2. Its average speed. अरे सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही तो है. फर्स्ट वाले का रिजल्ट क्या आया था? 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2. लुक केयरफुली, इट इज द सेम क्वेश्चन. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो v2 प्लस v1/v1 इंटू v2 इज इक्वल टू 2/v. This will go up, this will come down, and this v will be rearranged. So we'll get formula 2v1 v2 upon v1 plus v2, and this is my v average. बच्चा ये रिजल्ट हमको याद रखना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिजल्ट. ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. क्वेश्चन नंबर 4. A car moves from x to y with a uniform speed vu. This is x, this is y. It is going from x to y. Speed क्या है? vu. जाते वक्त है speed vu. And returns to x, actually it should be like that. With the speed what? vd. The average speed for the round trip. Again the same funda, dear students. Again the same funda. Do I need to solve it? No, it is again the same thing. Distance covered will be xy plus xy and the speed time will be t1 plus t2. Same approach, same result. 2 vd vu upon vd plus vu. Same funda, dear students. Let us try question. This was question number 4. Let us try question number 5. A car is at rest. Wow. Car is at rest मतलब u कितना हो गया बच्चा हमारा? 0. एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो आप काइनेमैटिक्स की तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं. तो स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले आप ऑप्शन चेक कीजिए, सारे ऑप्शन मीटर में है तो कृपया करके इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए. तो बेटा आपका जो वेलोसिटी है u तो हमको 0 दे दिया, 144 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5/18. आई होप ये सबको मालूम है. ओके, कैंसिलेशन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स. कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? ये 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 बचा 24. आंसर कितना होगा बेटा? ये 1 ज़ा, ये 8 ज़ा, 8 5 ज़ा. सिंपल. ओके, इन टाइम 20 सेकेंड्स. तो डेटा में आपको क्या दिया डियर स्टूडेंट? टाइम. हाउ मच इज द टाइम? 20 सेकेंड्स. और अपने को एस पूछा है डियर स्टूडेंट्स. अभी हमारे पास s की दो इक्वेशन है. एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. डियर स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट. कौन सा वाला यूज कर सकते हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो देखते हैं क्या क्या है मेरे पास. u पता है, टिक कर दिया. 0 है बट पता है. टाइम, यस आई नो इट. एक्सेलरेशन, आई डोंट नो इट. टाइम, यस आई नो इट. डिस्प्लेसमेंट, आई डोंट नो इट. बेटा इन द एंटायर इक्वेशन हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 unknown. I cannot solve it. तो सर इसमें से एक अननोन को कम करो, एक्सेलरेशन निकाल लो. कैन आई फाइंड एक्सेलरेशन? यस, v इज इक्वल टू u प्लस 80. बेटा v इज हाउ मच? 40. u इज 0. एक्सेलरेशन डोंट नो. टाइम इज 20. तो एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. नाउ वी कैन सॉल्व इट ना. u I have put 0, half, acceleration is 2. Time is, dear students, how much? 20 का square. I'll get s. 2 and 2 will cancel. 20 का square comes out to be how much? 400 meters. Which option बचा लोग? Option C. Sweet and simple. Let's try next question. Question number 6. A bus traveling the first 1/3 distance at a speed 10 km per hour, the next 1/3 distance at 20 km per hour, and the last 1/3 at 60 km per hour. The average speed is, मतलब the distance has been divided into 3 parts. Let me write the data. Question number 6. V1 10 km per hour, V2 20 km per hour, V3
60 किलोमीटर पर एंड ऑल द डिस्टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो डायग्राम ड्रॉ कर ले, ठीक है। d/3 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 बराबर बचा। यहाँ की स्पीड v1, तो यहाँ का टाइम t1, यहाँ का टाइम t2, यहाँ का टाइम t3। सेम अप्रोच। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलिए बेटा। एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस। द टोटल डिस्टेंस विल बी d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 which will become 3d/3 which will become what? d ना। चलो लिख देता हूँ, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। लेट्स फिनिश दिस ऑफ। ऊपर हो जाएगा d/3 d/3 प्लस d/3 d। टाइम इज व्हाट डियर स्टूडेंट? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज हाउ मच? d/3। स्पीड इज हाउ मच? 10। सेकेंड वाले में डिस्टेंस इज हाउ मच? d/3। स्पीड इज व्हाट? 20। थर्ड वाले में अगेन द डिस्टेंस d/3, स्पीड इज व्हाट? 60। d कॉमन निकल के कैंसिल भी हो गया, 3 कॉमन निकल के ऊपर चला गया। सब में से 3 कॉमन है ना बच्चों, d कैंसिल हो गया। 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 60। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, 3 इंटू 60। 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है? 10। 1 0 कैंसिल। 18 आंसर बनना चाहिए। 18 किलोमीटर पर आवर शुड बी द फाइनल आंसर। Question number 7. Okay, a car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance at a speed 40 kilometer and the second half of distance at speed v. The average speed is 48 kilometer. वही फंडा है ना 7th वाले में भी। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ मतलब इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल टाइम। फॉर्मूला बेटा मैंने बोला था आपको लर्न बाय हार्ट करने को, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उन्होंने अपने को टोटल डिस्टेंस डी दिया है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस डियर स्टूडेंट कौन सी वेलोसिटी है? 40। तो ये हमारे बोल दूंगा v1 है। ये मेरे लिए एवरेज स्पीड दिया है, v एवरेज। ओके चलिए मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आप रेडी रहिए बेटा। तो v एवरेज के जगह पे आई एम गोइंग टू राइट 48 टू v1 के जगह पे आई एम गोइंग टू राइट 40, v2 आई डोंट नो एंड यहाँ पे इट विल बी 40 प्लस v2। चलिए मैथमेटिक कर लेते हैं। 8 5 are 40, 8 6 are 48, 2 1 are 2, 3 are. So therefore 3 into 40 plus v2 is equal to 5 v2. 3 into 4 is how much beta? 120, 120 plus 3 v2. तो 120, 5 v2 और 3 v2 उधर चला गया तो 2 v2। तो v2 कितना हो जाएगा बेटा? 120 डिवाइड बाई 2 हाउ मच? 60। आर वी क्लियर? चलो ये सब इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 40, a car covers the first half of the distance between two places at 40 km per hour and other at 60 average speed. Not doing it dear students. If you want to try you can do it. It's a straightforward formula. क्या फॉर्मूला लगाना है बच्चों? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आंसर आ जाएगा। लेट्स प्रोसीड। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 9। If the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square, where a and b are constants, then the distance traveled by it in time t equal to 1 second and 2 second. पहले डियर स्टूडेंट्स आप देख लेते हैं आपको क्या दिया है। v दिया है और आपसे डिस्टेंस पूछा है। हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया है क्लासरूम लेक्चर्स में कि अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सीक्वेंस कुछ ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी टेक डिफरेंशिएट और स्लोप, velocity से acceleration you again differentiate or take slope. If you want to go in reverse manner, acceleration से velocity you integrate, then velocity से displacement you integrate. तो in our situation velocity से क्या चाहिए? displacement चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा। पहले वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है वेलोसिटी की इक्वेशन? at प्लस bt स्क्वायर and they want displacement from time t equal to 1 and time to time equal to 2 seconds. ठीक है। Children, velocity can be written as dx by dt, which will be at plus bt square. Correct? Right side में I am writing
देयरफॉर ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 चालू हो गया बच्चा. dx will be equal to at plus bt square into dt. Correct? I want displacement, I will integrate it. Displacement I will take from 0 to x and time I will take from where to where बचा, from 1 से 2 तक का. Pay attention now. A as it is, t का integration with respect to dt क्या होता है? t square by 2. Upper limit 2, lower limit 1. Plus b, t square का कितना हो जाएगा? t cube by 3, upper limit 2, lower limit 1. Let's finish this off. बेटा पहले आपको t के जगह पे 2 डालना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 3. यहां पे आपको डियर स्टूडेंट पहले 2 का क्यूब करना है. 2 का क्यूब इज व्हाट? 8. 1 का क्यूब इज व्हाट? 1. 8 माइनस 1 7, 7 अपॉन 3. तो फाइनल आंसर शुड बी 3a by 2 plus 7b by 3. विच ऑप्शन? ऑप्शन सी. ठीक है. Let's try question number 10. A particle of mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to Vx is equal to bx raised to minus 2n, where b and n are constants and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is. They want acceleration, dear students. Velocity is how much beta? bx raised to minus 2n. They want acceleration. Velocity से acceleration चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? Differentiate. तो dear students, velocity is acceleration is dv by dt. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करूं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा. बोलो क्यों? क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करने के लिए भाई फंक्शन x का होना, t का होना चाहिए, और ये फंक्शन t का है ही नहीं. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू समथिंग लाइक दिस. एक्सेलरेशन इज dv by dt. इसको डियर स्टूडेंट्स मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, मैंने क्या किया, dx और dx से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे. ठीक है. आप बताएंगे बेटा dx by dt क्या होता है? बोलिए dx by dt क्या हो जाएगा बच्चा? v होता है ना, तो ये हो जाएगा v dv by dx. This is your acceleration. Simple. Now dear students, we can differentiate velocity with respect to x and then we can find the equation. तो सबसे पहले इसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं. तो d by dx हमारी जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो यहाँ से उठाई हमने और पुट कर दिया. b x रेज टू माइनस 2n, b बाहर आ गया. हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x रेज टू माइनस 2n का. x रेज टू माइनस 2n का डेरिवेटिव होगा माइनस 2n x रेज टू माइनस 2n माइनस 1. ये हो गया आपका dv by dx. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. v की वैल्यू क्या थी डियर स्टूडेंट्स, वो उठाइए. dv by dx तो जो आपने मेहनत से निकाला है वो डालिए. माइनस 2n x रेज टू माइनस 2n माइनस 1, और डी एक्स की v की वैल्यू क्या थी? b x रेज टू माइनस 2n. अब थोड़ा सा मैथमेटिक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? b और b मल्टीप्लाई हो गए बच्चों, b और b मल्टीप्लाई हो गए तो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा. माइनस 2n बाहर आ चुका है. x रेज टू माइनस 2n माइनस 1 माइनस 4n माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है. तो ये सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स अपना इक्वेशन बनने वाला है. चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है ये. माइनस 2n b स्क्वायर एक्स रेज टू माइनस 4n माइनस 1. आई थिंक दिस शुड बी ऑप्शन ए. थोड़ा सा टीडीएस है लेकिन आपको स्टेप्स पते होने चाहिए क्या करना है. अगर टाइम का फंक्शन नहीं है तो एक्स का फंक्शन है तो पहले उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, फिर वैल्यूज पुट किया. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग लेने का जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in one dimension under the force of under the action of a force
दिया नहीं है फोर्स, इज रिलेटेड टू टाइम t where t is equal to under root x plus 3, the displacement of particle when its velocity is 0. ठीक है, पहले आप इक्वेशन लिखिए, ये ठीक है, बोलो नहीं समझा, अरे +3 उधर चला गया, -3 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स, सिंपल। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, x का भी आपने ताज़ा वैल्यू निकाला है, क्या है वो, t-3 द होल स्क्वायर। बेटा व्हाट इज t-3, इट इज लाइक 2t-3, और चेन रूल लगाएंगे तो t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये आपको वेलोसिटी आया। लेकिन रुको, ठहरो जरा, देखो क्या बोला है उन्होंने, आपसे बोला है आप डिस्प्लेसमेंट दीजिए तब जब वेलोसिटी कितनी हो, 0, तो पुट v इज इक्वल टू 0, v की जगह पे 0 डाल दिए, तो 0 2-3, तो t-3 इक्वल टू 0, देयरफॉर आपकी टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। ये टाइम की वैल्यू आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में डालिए और x निकालिए, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जो उन्होंने हमको फाइनली बोला है निकालने को, x विल बी t-3 द होल स्क्वायर। सर हमको t की वैल्यू आई है 3, 3 - 3 द होल स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा अपने को, 0। अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन नंबर 12, a particle has initial velocity 2i cap and acceleration 2i cap plus 3j cap and acceleration 0.3 I cap plus 0.2 j cap. The magnitude of velocity after 10 seconds will be. Dear students, ये जो velocity आपको दी है वो 2D में दी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये velocity को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, आपको एक्सेलरेशन दिया है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, आपसे वेलोसिटी पूछा है v इज इक्वल टू u प्लस at। चलिए भाई शुरू करते हैं, u की वैल्यू कितनी डाली, 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी डाली, 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, इंटू टाइम दिया हमको 10 सेकेंड्स, 10 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, 3। चलिए पूरा मैथ्स कर ही लेते हैं, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस ये हो जाएगा 0.2j कैप। देखिए रूल ये कहता है i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, सॉरी 0.2 नहीं 2 हो चुका है वो, 2i कैप प्लस 3i कैप कितना हो जाएगा, 5i कैप, ब्यूटीफुल, 3j कैप प्लस 2j कैप 5j कैप। तो ये आपका वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म है। अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए सर वेलोसिटी विल बी रूट ऑफ कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 5√2। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड्स। नहीं दिया मीटर पर सेकेंड, यूनिट्स लिख देते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, question number 13, the motion of a particle along a straight line is described by equation x equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t in second, the retardation of the particle when its velocity becomes 0. wait a minute, retardation पूछा है, retardation का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, कब पूछा है एक्सेलरेशन, जब आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0। तो पहले x से v निकालो, v की वैल्यू 0 डालो, 0 आने के बाद कुछ टाइम मिलेगा, वो टाइम की वैल्यू एक्सेलरेशन इक्वेशन में डालो और एक्सेलरेशन निकालो। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, करते हैं। x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि आपको क्या मिले, वेलोसिटी dx by dt विच इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी। 8 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज वो कांस्टेंट है, 12 t का डेरिवेटिव 1, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, ये रही आपकी वेलोसिटी
और इसे कितना लेने कहा गया है, 0। वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो 12 will be equal to 3t square, therefore t square will be equal to 4, therefore time will be come out to plus or minus 2, but हम plus 2 लेंगे, time cannot be negative। वेलोसिटी की इक्वेशन से फिर यूज करेंगे एंड वील फाइंड व्हाट, एक्सेलरेशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv by dt will give you what, will give you acceleration। 12 का डेरिवेटिव 0, 3 as it is, t square का डेरिवेटिव 2t minus 60, this is the acceleration, and what is the value of time, time they are telling, so time की value 2 ले लो, put 2 here, it will become minus 12। Beta, what does this negative sign indicates? It indicates that your acceleration is negative, and if it is negative then it is called as what, retardation। नहीं समझा, क्लियर है? We move on to next question. Question number 14. A body is moving with a velocity 30 meter per second towards the east, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम आपको दे दिया 10 सेकेंड्स, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी चेंजेस एंड इट बिकम्स टुवर्ड्स वेयर, टुवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी इज 30 ईस्ट। पहले मैं इधर ये बना रहा हूँ, मुझे बताइए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट मतलब राइट, राइट मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आई कैप। वी क्या हो गया बेटा आपका 40, नॉर्थ में, नॉर्थ देखिए ऊपर है, मतलब क्या, जे कैप। एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन इज व्हाट, बोलो नहीं समझा, समझा सर। वी की वैल्यू कितनी है 40 जे कैप, ये कितनी है 30 आई कैप, टाइम कितना दिया बच्चों 10, फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा बोलिए, 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, आंसर इज 5। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15, लेट अस डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम, अभी थोड़ी देर पहले किया था, 3i कैप प्लस 4j कैप, और वो सेम आप खुद ट्राई कीजिए, करने की जरूरत नहीं है। क्या फंडा लगाएंगे बोलिए, v इज इक्वल टू यू बार प्लस ए टी, ठीक है, सेम रिजल्ट, सेम कुछ, करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, a particle moves a distance x in time t according to equation x is equal to t plus 5 raised to minus 1, the acceleration is proportional to, okay, तो हम लिखेंगे x is equal to t plus 5 raised to minus 1 which can be written as x is equal to 1 upon t plus 5। नहीं समझा, अरे भाई वो नीचे आया पावर, हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी, डिफरेंशिएट with respect to time, तो dx by dt will be what dear students, velocity 1 upon t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 upon x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 upon x स्क्वायर, तो माइनस 1 upon t प्लस 5 द होल स्क्वायर। ये हमको आ गया क्या बेटा, वेलोसिटी। अब फिर से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, t, तो dv बाई dt जो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। भाई ये माइनस 1 अपॉन टी प्लस 5 द होल स्क्वायर का कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखते हैं इधर, पे अटेंशन। कैन आई राइट दिस माइनस आउटसाइड, t प्लस 5 रेज टू माइनस 2, कैन आई से नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू n, x रेज टू n इज व्हाट, n x रेज टू n माइनस 1, तो माइनस 2 t plus 5 minus 2 minus 1, it will become minus 3, माइनस माइनस आगे हो गया 2 t plus 5 minus 3, if I bring it in the denominator it will become t plus 5 का क्यूब, this is your axis, तो हो जाएगा 2v raised to 3/2, तो वही आंसर हो गया, कोई वो नहीं है।
हाँ ऑप्शन आ जाएगा ए, नॉट एन इशू। क्वेश्चन नंबर 17. A particle starts its motion from rest under the action of constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1 and the distance covered in first 20 seconds is s2, then distance का फॉर्मूला है ut plus half at square. Initially rest मतलब u0 मतलब s is directly proportional to t square. Come on man, let's finish this off. Can I say s2 upon s1 will be t2 अपॉन t1 द होल स्क्वायर? बेटा पहले आपको टाइम कितना दिया है 10, बाद में कितना दिया है 20, 0 0 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, विच ऑप्शन? बी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18. A distance traveled by a particle starting from rest and moving with acceleration 4/3 meter per second square in the third second is, in the third second, 3 second नहीं बोला, third second, एक फॉर्मूला पढ़ा है, Sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1. This is the distance traveled in nth second. तो हमको distance traveled in which second बोला है? third. Starting from rest, you pay attention, u 0 हो गया ना बेटा, ए की जगह पे क्या डाल देंगे 4/3, 2 एज इट इज, 2 3 minus 1. लेट्स फिनिश इट ऑफ. 2 into 3 6, 6 minus 1 5, 5 into 4 20, 20 upon 6 which is 10 upon 3 which is ऑप्शन सी. हो गया, मैंने भाई डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है, आप भी कर सकते हैं. 19 वी आर नॉट डिस्कसिंग बिकॉज इसमें डेटा मिसिंग है. क्वेश्चन नंबर 20. A particle moves in a straight line with a velocity, with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second. मतलब this is initial velocity, this is final velocity. This is my u. What? This is my u. This is my v. And distance s दिया है. The value of t is. First, I'll find acceleration. V square is equal to u square plus 2as. How much is v? 20 square. U square is 10 square. Plus 2a, I don't know. S is how much? 135. 20 square is 400. 400 minus 100 will give me 2 into 135. 2 into 135 is what? It will become 270a. So acceleration will be equal to 300 divided by 270, which is 30 by 27, which is 10 upon 9 meter per second square. And they want time. Can I say v is equal to u plus 80, v 20, u 10, acceleration 10 upon 9. They want time. 20 minus 10 is 10, 10 10 cancel, time is equal to 9 seconds. Simple mathematics. Question number 21. Let's discuss. The position x of a particle with respect to time t along x-axis is given by x is equal to 3t square minus t cube, where x is in meters and t is in seconds. What will be the position of particle when it achieves maximum speed along positive x-axis? Maximum speed. देखते हैं. Let's try to understand. x दिया ना बच्चों अपने को. How much is x? 9t square minus t cube, where x is in meters. What is the position? They want x, but x कब चाहिए जब पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम हो जाए. ये maximum speed is very important. We'll try to understand this. First we will find velocity. We will find velocity by differentiating with respect to time. So dx by dt will be velocity and differentiation. T square का will become 2t and t cube का it will become 3t square. Answer will come out to be 18t minus 3t square. ये है बेटा. एक चीज़ हमने पढ़ी है जिसको बोलते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. उसमें पहला स्टेप ये होता है कि आप जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, ओके, और उसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो लो.
तो अगर आपको चाहिए तो इस फंक्शन का डियर स्टूडेंट्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करो इसको डिफरेंशिएट, तो 18t का डिफरेंशिएशन 18 हो जाएगा, 3t स्क्वायर का हो जाएगा 6t, और इसकी वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 0। ये होता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ऐसा नहीं है, मतलब पहले आप स्लोप को 0 लेंगे, फिर एक t की वैल्यू आएगी, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत कुछ है। लेकिन आपको फिलहाल के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ का मैक्सिमम लेना है वैल्यू, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। बेटा मैं रीअरेंज करूँगा, मुझे टाइम की वैल्यू आएगी 3 सेकेंड्स। अब मैं ये 3 की वैल्यू x में डाल दूंगा, तो x at 3 विल बी वॉट, 3 स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 9 इज 81, 3 का क्यूब इज 27, है ना, 81, एम आई करेक्ट, 3 ना, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 9 81, 81 माइनस 27, 11 माइनस 7 इज 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 2 इज 54, 54 मीटर्स, ऑप्शन ए, ब्यूटीफुल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश हुआ। Let's start with question number 22. A particle moving along x-axis has acceleration f. Acceleration a बोलने की जगह पे उन्होंने f दिया है। At time t, given by f is equal to f naught 1 minus t upon t, छोटू t upon बड़ू t, where f naught and t are constants. The particle at t is equal to 0 has 0 velocity in the time interval between t is equal to 0 and the instant when f equal to 0, particle's velocity is, भाई एक टाइम इंटरवल दिया है, I'll call this is t1, t2 मुझे निकालना है। t2 निकालने के लिए when f is equal to 0, f को आप 0 ले लो डियर स्टूडेंट्स, f को 0 ले लो तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो f की वैल्यू क्या थी, f नॉट 1 माइनस छोटू t अपॉन बड़ू t इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 1 minus छोटू t upon बड़ू t will be equal to 0. Therefore छोटू t will be equal to बड़ू t. तो now I have two important thing. एक मेरा t1 हो गया 0 seconds और एक मेरा t2 हो गया t seconds. इसके इंटरवल में मुझे क्या निकालना है, इसके इंटरवल में डियर स्टूडेंट्स मुझे निकालना है पार्टिकल की वेलोसिटी। भाई मुझे एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन इज f इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस छोटू टी अपॉन बड़ू टी। एक्सेलरेशन को लिखूंगा dv बाई dt विच विल बिकम v। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेक dt देयर एंड आई एम गोइंग टू फाइंड वेलोसिटी यूजिंग इंटीग्रेशन। लेट्स इंटीग्रेट। लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट है 0 से t तक का। लेट्स डू इंटीग्रेशन। f नॉट बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2t। अपर लिमिट क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल T, लोअर लिमिट 0। लेट्स पुट द वैल्यूज। f नॉट एज इट इज t माइनस 0 t, यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 विच इज t स्क्वायर बाई 2t, एक t कैंसिल, f नॉट t माइनस t बाई 2, तो f नॉट इंटू t बाई 2। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैच कहाँ पे है, कैच यहाँ पे है। जब आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने बोला है जब f 0 हो, तो पहले आप t1 t2 निकालो फिर इंटीग्रेशन करो। 23 A particle moves along a straight line OX at a time t in seconds along x in meters of the particle from O is given as, distance of the particle from the origin is given as x is equal to 40 plus 12t minus 3t square. How long would the particle travel before coming to rest? अगर पार्टिकल रेस्ट कर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। मैं इसको फटाफट हिंट से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं बोलूँगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। हिंट मतलब लॉजिक फटाफट लगा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कर लिए। वेलोसिटी क्या हो जाएगी जल्दी जल्दी बता दीजिए। 40 का 0 हो जाएगा, 12t का 12 हो जाएगा और t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब वेलोसिटी को 0 डालना होगा क्योंकि पार्टिकल रेस्ट हो जाता है, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 12 उधर जाएगा तो t स्क्वायर विल बी 4। तो बेटा t की वैल्यू कितनी हो गई,
2। t की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में कृपया करके डाल दीजिए और आपको x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम लोग। तो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, 40 2 इंटू 12 इंटू 2 24, 40 प्लस 24 64, 64 माइनस 2 का क्यूब 8, 64 माइनस 8 इज 56 meters. This is our answer. Question number 23 done and dusted. Question number 24. The displacement x of a particle varies with time t as x is equal to a e raised to minus alpha t plus b e raised to minus beta t, where a, b, alpha and beta are positive constant. The velocity of particle will be. Let's find velocity, dear students. X is equal to a, first a है अल्फा है, श्योर कर लेते हैं, a e raised to minus alpha t प्लस b e raised to minus beta t। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भाई एक चीज होती है चेन रूल। आप डेरिवेटिव निकालना जानते हो e raised to x का, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x होता है e raised to x, लेकिन आपको अगर मैं कहूं डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x निकालो तो आप e raised to 2x का आंसर लिखेंगे e raised to 2x, और जो x के आगे का कोएफिशिएंट उसको फिर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e raised to 2x इंटू 2। क्लियर है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, यही आपका चेन रूल है। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt will be velocity a as it is, कांस्टेंट है, e raised to minus alpha t as it is। मैंने बोला चेन रूल लगाओ तो जो t कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या, फिर b e raised to बीटा t का बीटा ही t आएगा, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। भाई a और अल्फा बीटा आ रहा है तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा बीटा जीरो। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं a अल्फा और बीटा को जीरो ले लूँ तो भी वो टर्म्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि a और b है। गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, नो बेटा ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, इट इज नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 25। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, अरे भाई एक बार वो फिर से बता दूं आपको हुआ क्या है, अल्फा और बीटा पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो इक्वेशन में अल्फा और बीटा है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अल्फा और बीटा को जीरो डाल दीजिए, मान लीजिए अल्फा बीटा को जीरो डाल दी तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, तो e raised to minus 2 बीटा टी माइनस बीटा टी कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि a और b दो टर्म्स है। गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो फंक्शन से डिक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि एक फंक्शन अगर टाइम का है तो दूसरा फंक्शन टाइम का पॉजिटिव है और एक्सपोनेंशियल है, तो एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। दूसरा डी सबसे बेस्ट है, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम एक्सपोनेंशियल। 25 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल is represented by following equation, s is equal to 3t cube plus 7t square plus 5t plus 8. What are they asking? The acceleration of the particle at time t is equal to 1 second. चलो क्विकली कर लेते हैं, वेलोसिटी निकालिए, बोलिए बोलिए। t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, t का हो जाएगा 1 और 8 का हो जाएगा 0 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। चलिए एक्सेलरेशन निकालिए, 3 3 सा 9 ऑलरेडी हो चुका था, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, 7 2 सा 14, t का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, आंसर हुआ 18t प्लस 14। टाइम कितना डालने बोला उन्होंने 1, 18 इंटू 1 18, 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैन वी प्रोसीड? यस। Question number 26. A car moving with the speed of 40 km per hour can be stopped by applying brake by at least after 2 meters. Stopping distance उसका 2 meter है. If the same car is moving at the speed of 80 km per hour, stopping distance, dear students, v square is equal to u square plus 2s.
आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी आखिरकार रुक ही जाएगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो आप लिखेंगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2s, माइनस ये आ रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन है, इसका मतलब यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। फिनिश ऑफ कीजिए, u1 अपॉन u2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू s2 अपॉन s1। बोलिए u2 कितना है 80, u1 कितना है 40, s2 नहीं मालूम, s1 कितना था 2। 80 अपॉन 40, 0 0 कैंसिल, 8 अपॉन 4 मतलब 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और वो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। इजी पीजी। 27th question. The displacement of the particle varies with time t as s is equal to at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0. Same situation, dear students. We take s, we differentiate it and find v. चलो find v. A t square का derivative 2t, t cube का 3t square. And now we find acceleration. 2a t का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3b t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। टेकिंग एक्सेलरेशन 0, उन्होंने बोला है ना बेटा एक्सेलरेशन 0, तो अच्छा ये हो जाएगा 3b 2t, करेक्ट है। तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2a विल बी इक्वल टू 3b इंटू 2t, 2 and 2 विल कैंसिल, तो a अपॉन 3b इज इक्वल टू t, ऑप्शन बी। Question number 28. A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapses t, then the maximum velocity is. Let's try to understand this graphically. पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर डीएक्सेलरेट हुआ और फिर रेस्ट पे आ गया। वाह भाई, इधर देखो, एक्सेलरेट हुआ ये, फिर डीएक्सेलरेट हुआ और फाइनली वेलोसिटी किसी हो गई रेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ग्राफ का वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको अल्फा एक्सेलरेशन मिलेगा। तो लेट अस कॉल दिस इज a1, दिस इज a2। a1 विल बी स्लोप, स्लोप विल बी व्हाट डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एक मैक्सिमम वेलोसिटी रीच किया ना, पूरे सफर को तय करने में टाइम कितना लगा t, इतने के लिए टाइम कितना लगा t1, इतने के लिए टाइम कितना लगा t2। स्लोप इज व्हाट डियर स्टूडेंट्स, dv by dt which is opposite upon adjacent। इस ट्राइंगल का ऑपोजिट ये है, कितना है बेटा वो v max, और एडजेसेंट क्या है t1, और स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। ये हो गया आपका, ओके। सिमिलरली आपको बीटा यहाँ से मिल जाएगा ये ट्राइंगल में, ये आपका स्लोप अल्फा दिया, ये आपका स्लोप रहेगा बीटा, तो बीटा विल बी वी मैक्स अपॉन t2, बट ये रिटार्डेशन नेगेटिव है। व्हाट आर दे आस्किंग अस, दे आर आस्किंग अस द मैक्सिमम वेलोसिटी acquired। तो सिंपली कहना है जस्ट राइट t1 प्लस t2 इज t, पर t1 किसके बराबर है, देखो t1 किसके बराबर, इधर जाएगा तो v मैक्स अपॉन अल्फा हो जाएगा ना, तो v मैक्स अपॉन अल्फा प्लस v मैक्स अपॉन बीटा इज इक्वल टू t। अब v मैक्स कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब तो आप समझ गए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टाइम चाहिए, टाइम तो अल्फा इंटू बीटा उधर चलाएगा, इट शुड बी ऑप्शन डी, है ना। बीटा प्लस अल्फा इधर हो जाएगा, अल्फा बीटा नीचे हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, तो टेंजेंट बनाइए, सी का टेंजेंट इधर, डी का टेंजेंट इधर, ई का टेंजेंट इधर, एफ का टेंजेंट इधर,
नेगेटिव पूछा है बेटा, जिसका स्लोप टेंजेंट नीचे आ रहा है, जिसका स्लोप नेगेटिव नीचे आ रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ढलान, उसका टेंजेंट जो है उसका वो नेगेटिव है, तो ई पे वेलोसिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 30, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4। आपको पूछा एक्सेलरेशन, वी आर नॉट डूइंग इट डियर स्टूडेंट्स। द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, पहले आप एस एक्स निकालो, फिर एक्स से वी निकालो, फिर वी को जीरो लो, फिर उससे कुछ टाइम आएगा, फिर टाइम का वैल्यू डालो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, वेरी लेंथी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, नॉट लेंथी, सिमिलर क्वेश्चन। Okay, a body starts from rest. What is the distance traveled by body in fourth and third second? फोर सेकेंड नहीं बोला, फोर्थ सेकेंड, 3 नहीं बोला, थर्ड सेकेंड। SN वाला फॉर्मूला लगाइए, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 S4 अपॉन S3 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u क्या लेना है, 0, a बाई 2 2n की जगह पर डालेंगे 4 माइनस 1, a बाई 2 2n की जगह पे डालेंगे 3 माइनस 1, a बाई 2 कैंसिल, 2 इंटू 4 इज 8, 8 माइनस 1 इज 7, 2 इंटू 3 is 6, 6 माइनस 1 इज 5, 7 by 5 इज द आंसर। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन 1D। पहला ग्राफ देखिए, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, ये 1 डिमेंशन है। तीसरा ग्राफ देखिए, नॉन लीनियर है बट है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। थर्ड, साइन वेव जैसा है कुछ, ये तो नहीं पॉसिबल है भाई, एक टाइम पे पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी, दिस इज नॉट 1D 1 डिमेंशन, इट इज 2 डिमेंशनल। चलो, a car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 and 40 km/h. The velocity of car midway between point Q and Q. भाई इसका डियर स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है, लर्न बाय हार्ट। वेलोसिटी 33 क्वेश्चन, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट विल बी अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी एट फर्स्ट पॉइंट बट वेलोसिटी ऑफ सेकंड पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट रिजल्ट, फर्स्ट पॉइंट पे कितना है 30 स्क्वायर, सेकंड पे कितना है 40 स्क्वायर, 30 स्क्वायर इज व्हाट 900, 40 स्क्वायर इज 16, आंसर विल बी 50 स्क्वायर बाय 2 विच इज 50 बाय रूट 2। इफ यू वांट यू कैन रैशनलाइज एंड यू विल गेट आंसर सी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रिलेटिव मोशन एंड हाउ मच व्हाट। ठीक है, रिलेटिव मोशन करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड देन विल फिनिश इट ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 चिल्ड्रन। A bus is moving with a speed of 10 meters per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake a bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooter, what should be the speed of the scooterist chase the bus? Dear students, velocity of bus आपको दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, velocity of scooter आपको मालूम नहीं है, velocity of scooter with respect to bus will be vs minus vb, ये आपको मालूम है, relative motion। बेटा distance how much it is 1 kilometer, time how much it is 100 seconds, can I say velocity of bus will be equal to, या डायरेक्ट लगा सकता हूँ relative velocity ना, तो relative velocity is distance, how much is distance 1000, how much is time 1 second 10 100 second, है ना। velocity is displacement upon time, velocity of scooter नहीं मालूम, velocity of bus, ओ सॉरी बस का velocity 10 है, हमने कितना लिखा है 100, माशाल्लाह क्या मिस्टेक हुई है। ओके चलो ये हो गया, कितना हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा 10 + 10 20 मीटर पर सेकेंड। किसी को रिलेटिव वेलोसिटी समझने में डिफिकल्टी है तो आप सीधा बेसिक कंसेप्ट लगाइए, स्कूटर वाला पीछे है, बस आगे है, बस 1 किलोमीटर दूर है, और डियर स्टूडेंट्स बस के पास वेलोसिटी है, ये है स्कूटर एस, ये है बस, पहले से कितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, बस रुकेगी तो नहीं, बस चलती रहेगी, तो ये हो गई बस की नई पोजीशन।
बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा मैं अभी निकाल देता हूँ. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. बस की स्पीड कितनी थी बोलो 10. टाइम कितना लगा उसको 100. तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 1000 मीटर. स्कूटर वाले को ओवरटेक करना है. ऑलरेडी पीछे कितने से 1 किलोमीटर. बस ऑलरेडी आगे कितना जा चुकी होगी 1000 मीटर विच इज 1 किलोमीटर. तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है स्कूटर वाले को. डिस्टेंस कवर्ड हैव टू बी स्कूटर वाले को कितना करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स 2000 मीटर्स. और कितने टाइम में करना है 100 सेकेंड है ना. तो आ गया ना 2000 डिवाइड बाय 100 20. वेलोसिटी इज 2000 डिवाइड बाय 120. बट ये लेंदी है वो इजी है. क्वेश्चन नंबर 35. A train 150 meter long is going towards north at a speed of 10 meter per second. ठीक है. A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south. आप समझिए ये पहले किधर ट्रैवल हो रही है नॉर्थ. ये किधर ट्रैवल हो रहा है साउथ. दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना होता है ऐड करना होता है. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू bird will be what? It will be 10 minus 5. How much it will become? 15. They are asking time. Time is what? Distance. What happened? Time is distance upon speed. या velocity, displacement upon velocity है ना. बट यहाँ पे distance displacement same है because 1D motion है. Distance कितना है ट्रेन का 150. स्पीड कितना है 15. आंसर हो गया 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड में पैरेट उसको क्रॉस कर जाएगा. इजी क्वेश्चन. मोशन अंडर ग्रेविटी. लेट्स फिनिश दिस ऑफ. सिंपल. A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. Height निकालना है. Initial velocity 20. फाइनल वेलोसिटी 80. एस निकालना है. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके. v भी -20 u भी -20. सर नहीं समझा. हमने यहाँ पे ओरिजिन माना है तो जो भी चीज़ ओरिजिन के नीचे रहेगी वो नेगेटिव. -80 स्क्वायर -80 स्क्वायर -20 स्क्वायर. थोड़ा सा -20 स्क्वायर प्लस 2a माइनस g. एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड इसलिए -g. h 6400 -400 2 into 10 h. तो डियर स्टूडेंट व्हाट विल बी द फाइनल आंसर. ओके. h is also negative na because it is downwards. So it will become 6000 is equal to 20h. h will be equal to 300 meters. Simple. A stone falls freely under gravity. It covers a distance h1, h2, h3 in first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds. Relation between Galileo's law. Galileo's law of odd number 1:3:5. Which option? Sure. 38. एक मिनट. I have marked the wrong option. I have not seen the correct option. हाँ 1:3:5. h1 is to h2 is to this. तो h2 will be 3 times h1. h3 will be wait a minute. पहले में 5 कवर करेगा, दूसरे में 15, तीसरे में 25. तो 3 times h2 3 into 15 45 हो जाएगा. हाँ तो we can say that 1:3 yes 5. ऑप्शन ए करेक्ट है भाई. h3 will be 3 times h1, h2 will be 3 times h2. हाँ correct. 1:3:5. A boy standing on the top of the tower of 20 meter height drops a stone g equal to 10 meter per second velocity. Dear students, boy
कहाँ पे, टावर पे, कितना 20 मीटर। वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज √2gh। जी का वैल्यू 10, हाइट का वैल्यू 10, जी हाइट 20, सॉरी 400, आंसर विल बी 20। इजी पीजी। Question number 39. A ball is dropped from a high rise platform at t is equal to 0, starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. समझिए, पहले वाले को आपने रिलीज किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है बल्कि वो v है। दोनों बॉल 18 सेकेंड्स पे मीट कर रहे हैं तो इसको टाइम लगा नीचे आने के लिए 18 सेकेंड्स। इसको आपने फेंका है तो और कितने सेकंड बाद फेंका है, 6 सेकंड बाद, तो इसको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 12 सेकेंड्स। बट ये और वो दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है। h इक्वेशन लिखते हैं, h1 इक्वल टू h2, s मतलब बेसिकली s, तो इट विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2 2 1 1, दोनों का टाइम अलग। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन तो हमेशा -g होता है, टाइम इसको कितना लगा 18 सेकेंड्स। इसका इनिशियल वेलोसिटी v, टाइम इसको कितना लगा 12 सेकेंड्स, प्लस हाफ -g, इसको टाइम कितना लगा 12 सेकेंड्स। ये इधर जाएगा, हाफ जी कॉमन हो जाएगा, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ जी। ओके, एंड ये वेलोसिटी को भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो नीचे की तरफ फेंका है हमने, तो सब में प्लस आ गया बेसिकली। 18 स्क्वायर इज हाउ मच, 18 इज 324, 324 माइनस 144 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 324 माइनस 144, 4 क्या 0, 12 माइनस 4 8, 180, 180 डिवाइड बाई 2 90, 90 अपॉन 12 इज 45 डिवाइड बाई 90 अपॉन 12, हाँ 90 अपॉन 12, आई एम नॉट करेक्ट, 4 दिस इज 4 माइनस 4 0, 32 माइनस 4 इज 180 हो रहा, 1800 डिवाइड बाई 2, yes it is not 90, it is 900, 900 divided by 12 will be 75, correct। हाँ, mental maths dear students कर सकते हैं, 900 divided by 12, okay। question number 40। A man of mass 50 kg, a man of 50 kg mass is standing on a gravity-free space. Underline this word, gravity-free space. Gravity-free space. Gravity है ही नहीं. At a height 10 meter above the floor. Floor 10 meter. Okay. He throws a stone of 0.5 kg mass downwards. Okay, the stone is being thrown here. With a speed 2 meters per second. When the stone reaches the ground, the distance of the man above the floor will be. Let's try to understand. Net external force is 0. Therefore, by law of conservation of angular momentum, momentum of man plus momentum of ball should be 0. इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0, बोलो क्यों दोनों का मोमेंटम 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे। ओके, और बाद में डियर स्टूडेंट्स अलग अलग मोशन होगा। पॉइंटिंग इज एक्सटर्नल फोर्स 0 है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है डियर स्टूडेंट्स। इंटरनल फोर्स ही लग रहा है इसमें डियर स्टूडेंट, एक्शन रिएक्शन के तौर पे। मास ऑफ मैन इज m, वेलोसिटी ऑफ मैन आई डोंट नो। मास ऑफ बॉल इज 0.5, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 2। तो मास ऑफ मैन अच्छा मालूम था 50v माइनस v, तो v इज इक्वल टू माइनस v अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड। बॉल नीचे आ रहा है तो बॉल को कितने टाइम में बॉल नीचे आया नहीं मालूम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ओके, वी आर नॉट यूजिंग काइनेमैटिक्स, ग्रेविटी है ही नहीं तो एक्सेलरेशन तो जीरो लेना पड़ेगा ना. डिस्टेंस विल मतलब यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस इज हाउ मच 10, स्पीड इज हाउ मच 2, 5 सेकेंड्स. बॉल 5 सेकेंड्स में नीचे पहुंच जाएगा. ये माइनस यहाँ पे जो आया ना बेटा, ये इंडिकेट कर रहा है कि बंदा ऊपर जा रहा है. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैन ने -1/50 5 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा 0.1 मीटर. तो द मैन हैज मूव्ड 0.1 मीटर अहेड. तो ऑलरेडी 10 मीटर था और 0.1 हो गया, कितना हो गया 10.1. ऑलरेडी 10 पे था वो और एक्शन रिएक्शन की वजह से वो खुद ऊपर चला गया. जैसे रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ते हो ना आप, फ्यूल कंबशन प्रोडक्ट्स नीचे और रॉकेट ऊपर, वैसे ही स्टोन नीचे गया जिसकी वजह से ऐसा सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स. जस्ट बेसिक ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, बराबर है वो वाला टाइप का लॉजिक. 41. Two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height 16 and 25 meter. The ratio of time taken is. Dear students, general result है time taken is √2h/g. आप लगा लीजिए T1/T2 is equal to h1/h2. मास से कोई लेना देना नहीं है, बराबर है. तो √16/√25 5/4. डायरेक्ट रिजल्ट. A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? हाफवे पे स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड. पूरी डेस्टिनेशन देखो, A B हाफवे हो गया, C रिटर्न भी तो आएगा ऐसा. बेटा हम एक सिंपल सी बात बोलते हैं, आना जाना एक समान. तो अगर पॉइंट बी पे ऊपर जाते वक्त 10 मीटर पर सेकेंड है तो नीचे जाते वक्त भी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड. डाउनवर्ड मोशन में जब रिटर्न चालू किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0. ये रहा मेरा काइनेमैटिक इक्वेशन. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन विल बी -g, ये हो जाएगा -h/2 v स्क्वायर. v विल बी इक्वल टू व्हाट 2 कैंसिल √gh. g कितना होता है 10, वेलोसिटी कितनी है उसकी 10, पुट कर दो 10 √10 10 का स्क्वायर 100, 100 से 10 डिवाइड हो जाएगा, आंसर h का आने वाला है 10. अरे भाई हमने ऊपर जाने वाले मोशन को नीचे वाला मोशन ले लिया, क्यों, ताकि काम इजी हो जाए, क्योंकि ऊपर जाने वक्त वेलोसिटी मालूम ही नहीं है ना, बट नीचे आते वक्त वेलोसिटी 0 ले सकते हैं ना. इजी किया है, उस क्वेश्चन को इजी किया है हमने बाय टेकिंग डाउनवर्ड मोशन, और फ्री फॉल मान लिया फिर बाद में. 43. If a ball is thrown vertically upwards with speed u, the distance covered during t seconds, during its last seconds, A, B, C, ये है उसका डिस्टेंस लास्ट सेकेंड में, ये करेक्ट. तो लास्ट सेकेंड जब जाते हो तो आते वक्त ये यही डिस्टेंस होगा ना, सिंपल. चलिए इसको डाउनवर्ड मोशन के तौर पे देखिए, जाते वक्त लास्ट सेकेंड बी सी है, तो आते वक्त भी तो वही डिस्टेंस होगा. तो डाउनवर्ड मोशन के हिसाब से देखिए डिस्टेंस, जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो वो यहाँ से यहाँ आएगा ना, ये अपवर्ड हुआ तो ये डाउनवर्ड हुआ. यू कितना हो गया 0. अरे भाई जब ऊपर जाके जब नीचे आता है तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 रहती है ना, हाफ g/t स्क्वायर, खत्म. सिंपल. हमने कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, हमने इजी किया है. अपवर्ड की जगह पे डाउनवर्ड मोशन स्टडी कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे हैं अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड में वेलोसिटी ही नहीं मालूम है. A man throws balls with same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds. 2 सेकेंड में. ओके, what should be the speed of the ball so that more than two balls? Dear students, v is equal to u plus at. करेक्ट.
इनिशियल वेलोसिटी टॉप मोस्ट, मैं ऐसे ले सकता हूँ कि टॉप मोस्ट पोजिशन पे बॉल का फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस जी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा u बाई जी, करेक्ट। डियर स्टूडेंट g का वैल्यू कितना होता है 10, सॉरी उल्टा लिखा, g का वैल्यू 10 होता है, u मुझे मालूम नहीं, टाइम कितना ले रहा है बेटा 2 सेकेंड्स, 10 की जगह पे 9.8 ले लेते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन में वही चल रहा है, तो u कितना होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगर दो बॉल को हवा में रोकना है तो क्वेश्चन में बोला है मोर देन 2, अगर आप दो बॉल को रोक रहे हो तो 19.6 चलेगा। अगर आपको तीसरे को इंट्रोड्यूस करना है, इसका मतलब पहले को थोड़ा और लंबा सफर करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हो कि वो ज्यादा देर हवा में रहे ताकि तीसरा भी पहुंचे, तो आपको ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, मोर देन 19.6। 45, a ball is thrown vertically upwards with a velocity 40 per second, the velocity after 2 seconds। बेटा मैं ये आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, g का वैल्यू क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, g का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम का मतलब सेकेंड, वेलोसिटी का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कितने से कम होगी 10 से, 2 सेकेंड में कितने से कम होगी 40 से 30 हुआ, 30 से कितना हो जाएगा 20। डायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन सर हमको नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी, वेलोसिटी कितनी है 40, एक्सेलरेशन कितना होता है माइनस जी, टाइम कितना बोला 2 सेकेंड्स, 40 माइनस जी की जगह पे डाला 10, टाइम की जगह पे 2 डाला, 40 माइनस 20 कितना हो गया 20। क्लास में पढ़ाया था 50, 40, 30, 20, 10, 0, फिर आते वक्त 10, 20, 30, 40, 50 सेम। 46, a body is thrown vertically upward from a ground. It reaches a maximum height of 20 meter in 5 seconds. After what time it will reach the ground from its maximum height position? If it takes 5 seconds to go up, it will take 5 seconds to come down also ना, आना जाना एक समान, time of ascent equal to time of descent. A stone released with zero velocity, okay, छोड़ा है आपने, from a top of a tower reaches the ground in 4 seconds, the height of the tower is, oh भाई basic question है, time is equal to under root 2h by g, 4 second, 2, h की वैल्यू h, g की वैल्यू 10, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 4 का स्क्वायर 16, और h की वैल्यू आपके हो जाएगी सॉल्व करने के बाद मेरे हिसाब से 80 आना चाहिए, कर लेना हो जाएगा, ठीक है। 3 different objects of masses m1, m2, m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along 3 different frictionless paths. The speed of the 3 objects on reaching the ground will be in the ratio. masses से कोई लेना देना नहीं है, तो सबका आंसर 1:1:1। काइनेमैटिक्स में मास ही नहीं की, वो ही नहीं आ रही है कोई। 49th, a water drop falls at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the drop at the instant first drop touches. Oh भाई listen, ये है आपका नल, faucet. This is the first drop. This is the third drop just coming out. Somewhere here is the second drop. Third drop तब निकलता है जब second drop first drop पहुंच जाता है, और कितने सेकंड में हो रहा है ये 1 सेकंड में, ठीक है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एंड व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड में 2 बूंद निकल रही है, तो 1 बूंद को निकलने में कितना टाइम लगा 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स है डियर स्टूडेंट्स। तो कैन यू कैलकुलेट द टाइम, हाइट, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h by g, 0.5 is equal to under root 2h by g, 0.5 का स्क्वायर इज व्हाट हाफ ना, बेसिकली हाफ का स्क्वायर इज 1/4, 1/4, g का वैल्यू इज दिस हाउ मच, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 2h by g, g का वैल्यू 10, 2/4 is how 2/10 is 1/5, 5/4 is equal to h, तो h will be equal to 1.25। तो दूसरी बूंद ने कितना फासला तय किया
1.25 मीटर टैप से। टोटल कितना है हाइट 5 मीटर, तो ग्राउंड से कितना ट्रैवल किया 5 माइनस 1.25 3.75। सिंपल। क्वेश्चन 50, a body drop from a tower, top of a tower, falls through 40 meters during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is गैलीलियो। पहले 1 सेकंड में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25। ये दोनों को ऐड करो कितना होता है बोलो 40 मीटर। मतलब लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर कवर किया ना, हो गया ना ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 45 मीटर। सिंपल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th and 5th सेकंड ऑफ जर्नी? 1 3 5 7 9। 4th में 7th और 5th में 9th, 7/9। सर हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला लगाइए ना, Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। ए की जगह पे 0 डालना, n की जगह पे डालो 4, 2 × 4 8, 8 - 1 7, फिर 5 डालो, 2 × 5 10, 10 - 1 9। Galileo's law of number. That's it dear students, these are the PYQs which we have discussed. We'll stop here.